Good morning, class. This is Mohammad Moin. Hope all you are well. Today we have to discuss about exercise 21B of the chapter number 21. In this exercise we have to discuss about the median, how to find the median. In the previous lecture we have already discussed about the median, how to find the median. There are two methods, two formulae to find the median, one for the even data and one for the odd data. और इसमें हमने दो मेथड पढ़े थे, फर्स्ट फॉर द अनग्रुप डेटा एंड सेकंड फॉर द ग्रुप डेटा, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 21B पार्ट 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज. द डेटा इज गिवन टू मुझे 3, 11, 7, 2, 5, 9, 9, 2, 10. So if I am going to find the mean of the data, so there is no need to arrange the data. When we have to find the median, so we need to arrange the data in ascending or descending order. तो मैं इसको convert कर लेता हूँ ascending order में, ठीक है. तो first of all I start with the smallest number 2 times है, फिर 3 1 टाइम है, 4 नहीं है, 5 1 टाइम, 6 नहीं है, 7 1 टाइम, 8 नहीं है, 9 2 टाइम्स, 10 1 टाइम एंड देन 11. काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स नंबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड इट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो हेयर n इक्वल्स टू 9 means odd. So therefore I am going to use the formula of median for odd numbers, for odd observation. So median equals to n plus 1 upon 2th term or observation. The value of n is 9 plus 1 upon 2th term or observation. So we get 10 upon 2th term. If I am going to divide this, तो ये आ गया हमारा 5th term. तो therefore median equals to, now तो 5th term is not the answer, not the median. ये बोल रहा है कि जो 5th place पे नंबर आएगा that is the median. तो I am going to find कि which number comes in the 5th place in this arranging order. 1 2 3 4 5. तो क्या आया 5th place पर? 1 2 3 4 5. 7 comes on 5th place. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता क्या तब भी मेरा आंसर यही आता? तो यस, आंसर मेरा यही आता. कैसे? सॉरी 7. आप काउंट कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा साइड 1 2 3 4 5th. तो दोनों ही साइड से काउंट करोगे तो सेम मीडियन विल बी देयर. तो 7 इज द मीडियन ऑफ द डेटा. तो यू कैन फाइंड द मीडियन बाय दिस फॉर द odd observation. Remaining part of the question number 1 are the same, so you have to do it yourself. Now come to the second question, part 1. The data is given to a given 30, 32, 17, 19, 21, 22, 9 and 35. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म. तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसा करता हूँ. एक मैंने बोला असेंडिंग में कैसा, इसको डिसेंडिंग फॉर्म में कर लेते हैं कन्वर्ट, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटर नंबर. द ग्रेटर नंबर इज 35 here. 35 and 32, then 22, 21, 19, 17, 10 and 9. काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 means here n equals to 8 or that is even. So we have to find the median by the formula of median equals to, here the observation is even, so we have to use this formula
n अपॉन 2th टर्म या 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म एंड होल अपॉन 2. इन दिस आप देख रहे होंगे कि फॉर जब हम ऑड फाइंड आउट कर रहे थे तो उसमें था n प्लस 1 अपॉन 2. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड 1 in the observation and then divide by 2. But in this case, first of all, we have to divide and then add. So I'm going to put the values here. The value of n is 8. 8 upon 8 upon 2. 2th term. मैं आपको एक एक पार्ट करा रहा हूँ and the rest part you have to do it yourself at your home like this only. Term and whole upon 2. Now 4th term. ये भी 4 आएगा, 4 प्लस 1 5th टर्म एंड होल अपॉन 2. हेयर यू आर नॉट सपोज टू ऐड द टर्म्स, मतलब यहाँ पर आपको ऐड नहीं कर रहा है इन दोनों को. 4th एंड 5th मतलब 9th टर्म नहीं हो जाएगा ये. तो वी हैव टू पुट हेयर द वैल्यूज ऑफ 4th द ऑब्जर्वेशन एट 4th प्लेस एंड हेयर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एट 5th प्लेस. तो काउंट करता हूँ मैं 1 2 3 4 ये आ गया, मीन्स 21. एंड फ्रॉम एट द 5th प्लेस ये वाला आ गया, मीन्स 19 अपॉन 2. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू नंबर्स. इफ आई एम गोइंग टू ऐड इट विल 40 अपॉन 2. देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 20. ये हमारा आंसर आ गया था. देयर इज नो नेसेसरी कि आपका जो आंसर आएगा विल कम फ्रॉम दिस ओनली. हो सकता है वो आपका आंसर कहीं और से भी आ जाए, मीन्स इसके मिडिल में ही, इसके बीच में ही लाई करेगा. जरूरी नहीं जो हमें डेटा गिवन है उसमें से ही हमारा कोई मीडियन हो. एंड सपोज इफ आई एम गोइंग टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग फॉर्म, क्या तब भी मेरा यही आंसर आता? तो 4th एंड 5th टर्म अब मैं बैक से काउंट कर लेता हूँ. 1 2 3 4. तो 4th पे ही आता, 5th पे ही आता, मीन्स 19 प्लस 21. तो रिजल्ट विल बी द सेम इन बोथ द केसेस. सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. In the question number 3, we have to find the median of the first 15 odd numbers. तो हमें पता होना चाहिए कि what are odd numbers. तो odd numbers are those numbers which are not divisible by 2. So first of all, I am going to write 15 odd numbers. First 15 odd numbers. Odd numbers तो बहुत होते हैं, पर we have to write first 15 odd numbers. तो first 15 odd numbers are, मैं लिख देता हूँ, odd numbers. फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स में लिखने जा रहा हूं. इट स्टार्ट फ्रॉम 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31. पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, अगर ज़्यादा हो गए होंगे तो कम कर देंगे और अगर कम होंगे तो वी हैव टू इंक्रीज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. मतलब 15 कंप्लीट हो चुके हैं. ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको मैं रद्द कर देता हूँ. तो दीज आर फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द मीडियन ऑफ दीज डेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द n. n here is 15. 15 मीन्स होता है ऑड. इट मीन्स आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. ऑड नंबर का थोड़ा इजी होता है फॉर्मूला, डायरेक्टली यू कैन फाइंड. इसमें थोड़ा इवन में थोड़ा लेंदी हो जाता है. नाउ 15 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म. It means 16 upon 2th term, or you can write 16 upon 2th observation. ये हो गया 8th observation और term. तो now count which observation or which term comes in the 8th place. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 15 will come at 8th प्लेस. अगर मैं बैक से काउंट करूंगा तब भी यही आएगा. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8.
It means 15 is the median of the given data. You can find by this method. Now question number 4. In the question number 4, we have to find the median of first 10 even numbers. Even numbers are those numbers which are divisible by 2. So I am going to write here first 10 even numbers. So first 10 even numbers are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. काउंट कर लेता हूँ मैं 10 हुए या नहीं हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completed. Now here the value of n equals to 10 means even. So I am going to use the formula for the median equals to n upon 2th term or observation plus n upon 2 plus 1th term and whole upon 2. Now I'm going to put the value here. N means number of observations, so there are 10 number of observations, so 10 upon 2th term plus 10 upon 2 plus 1th term and whole upon 2. It is 5th term. If I am going to divide this, 5 plus 1, 6th term and whole upon 2. आपको यहाँ ऐड नहीं करना है. You have to put the values at 5th and 6th place and then add. So at 5th place 1, 2, 3, 4, 5. At 5th place 10 and the 6th place is 12. So 10 plus 12 upon 2. So therefore you get 22 upon 2. So therefore median equals to 11. तो देखिए 11 आया मीन्स इसमें से नहीं आया तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि द मीडियन कम फ्रॉम द गिवन डेटा. उसके मिड की कोई वैल्यू हो सकती है, वो नॉट नेसेसरी कि उसी डेटा में से कोई एक नंबर मीडियन हो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन द क्वेश्चन नंबर 5 द क्वेश्चन इज सेड फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स. यहाँ पे 50 होल नंबर्स की बात कर रहा है, फर्स्ट 50, एंड वी नो दैट द whole numbers start from 0. So I am going to write first 50 whole numbers equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. अब मैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं डॉट डॉट लगाने के बाद लास्ट के नंबर लिख देता हूँ 48, 49. 50 नहीं आएगा. हम बात तो कर रहे हैं फर्स्ट 50 होल नंबर्स की. 50 इसलिए नहीं आएगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड 0, तो 0 से काउंट करेंगे. मतलब 1, 2, 3, 4. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो 50 कंप्लीट होंगे वो 49 पे आकर कंप्लीट होंगे. तो लास्ट नंबर इज 49. बहुत ज़्यादा हो रहा था डेटा, इसलिए मैंने इसके लास्ट डिजिट्स को राइट कर दिया. ठीक है. हियर 50 होल नंबर्स आर देयर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज 50 मीन्स इवन. तो वी हैव हियर वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन जो अभी हमने यूज किया था. n अपॉन 2th टर्म plus n upon 2 plus 1th term and whole upon 2. Now put the value of n here. It's 50 upon 2th term or observation plus 50 upon 2 plus 1th term or observation and whole upon 2. It's 25th term or observation plus 5 plus 1, 26th term upon 2. Now I am going to put the values are given at 25th and 26th place. At 25th place count कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So at 25th place, 24 is to be there, and 26th place, 25 is to be there. एक नंबर पीछे इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने जीरो भी इसमें इंक्लूड कर लिया था. तो at 25th place 24 and at 26th place 25 is to be there upon 2. Going to add them, it's 49 upon 2. Therefore the median equals to, divide this, 2.5. तो आपको बताया था मैंने, इट इज़ नॉट नेसेसरी द मीडियन कम्स फ्रॉम द गिवन डेटा. ये इसके मिड की वैल्यू होती है. तो 22.5 इसके मिड में कहीं आ रहा है. दैट्स वाई दिस इज अ मीडियन. और इट कम्स इन अ डेसिमल फॉर्म, इट ऑल्सो कम इन अ रेशनल फॉर्म, और होल नंबर्स में भी ये आंसर आ सकता है. तो टिल हेयर वी हैव टू डू, फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट lecture. Thank you.